ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਲੀਨ ਸਾਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫਿਲਮ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ और मेरा दिल बड़ा रोंदा है कि इस ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ जो किसानों का हाल इस देश की केंद्र सरकार ने किया है, बच्चे रो रहे सड़कों ते, औरतां रो रही हैं सड़कों ते, भुखे ते आए किसान जिन्होंने शायद बड़े दिनों तो पानी नहीं पीता, रोटी नहीं खाधी। मैं पिछले 40 दिन तो किसानों के नाल जूझ रहा। एक ऐसी दिवाली है कि जिस दिवाली के दौरान ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। लोग तो एहसान 7-7 जन्मां तक नहीं भुलते। एक केंद्र सरकार के लोग, ये लताड़ी हुई जनता हिंदुस्तान की पिछले 7000 साल तो उन्होंने लोगों वास्ते, उन्होंने जंजीरां तोड़न वास्ते उन्होंने एक मौका दिता कि तुसी हर त्यौहार मना सको। लेकिन एक ऐसे त्यौहार ने जिथे अपने ने उन्होंने लोगों के गल च फाहे पा लए, उन्होंने लोगों को दुखी करता, उन्होंने लोगों को मारता, मजबूर करता फांसी लैण ते, सुसाइड करन ते। मैनूं शर्म आउंदी है ये गल कहंदे हुए कि लोग तो किसी का पानी पिया नहीं भुलते, तो इन्हां लोगों ने साडे किसानां नूं, साडे मजदूरां नूं, हिंदुस्तान के सारे वर्ग वालिआं नूं दुखी कीता, तनहा कीता, बेघर कीता। इस दिवाली के दिन जे कोई दिवाली मना रहा है हिंदुस्तान का कोई आदमी या कोई औरत या कोई बच्चा, या दिवाली ते कोई पटाके चला रहा है, लख लानत दी जिंदगी ते उन्होंने जिउंदे जी मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस धरती उत्ते अपने दा खून डुले उत्थे दिवाली नहीं मनाई जाती। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਬੁਲਾਓ, 100 ਵਾਰ ਬੁਲਾਓ, 1000 ਵਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖੇ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਬਾਪ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਏਗਾ? ਅਲੰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ? ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਰੋਜ਼ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, the generation of today of this country, they should realize that is all this going right for them, for the generations to come? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਡੂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੀ ਸਿੱਟਦੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਹਿਮ ਦੈਨ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਮ ਪਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਖਾਣੀ है, सोने खाने, पत्थर खाने, उनको भूख नहीं लगती? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एन एक्टर और अ डायरेक्टर, एनीबडी, एक आदमी उठ के उसने आवाज़ नहीं उठाई। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, लोग, चलो इट्स ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देम बिकॉज आई एम वर्किंग इन देयर फिल्म, बट दिस इज सो सैड कि एक देश में जहाँ इतनी लैंग्वेज, इतने धर्म हैं, इतने कर्म हैं, कि एजुकेटेड जनता, आप लोग तो एजुकेटेड हो, हम तो शायद अनपढ़ हैं, लेकिन टुडेज जनरेशन ये रियलाइज़ ही नहीं करती और इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठा ही नहीं सकते बिकॉज दे सो स्कैर्ड। मुझे याद है न्याजीज़, जब हिटलर का राज चला था जर्मनी में, तो न्याजीज़ ने एक ऐसा रूल बनाया था, कोई बोल नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था, अगर कोई बात करे और सच बोले तो उसको फांसी लगा दी जाती थी। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे आर सो स्कैर्ड कि उनको सच्चाई कहने में बड़ी तकलीफ होती है, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ 80% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਥ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭਵਿष्य 'ਚ ਜੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ। जैसी कोको वैसे ले ले, जैसा कोच वैसे चेले, जैसी संख्या जैसी बात वैसी खाक। डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या सिखाया, आपको क्या संस्कार दिए। मैंने अपने बेटे युवराज को संस्कार ये दिए कि तेरी मौत भी हो सकती है, लेकिन तेरे हाथ में हिंदुस्तान की जनता के लिए वर्ल्ड कप होना चाहिए। मैं वो बाप हूँ जिसने अपने बेटे को बोला था तेरी लाश मैं उठा के लाऊंगा, तेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो। आज मेरी भी बारी आई है, मुझे भी ये कहा गया है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क द न्यू जनरेशन इज, क्या तुम लोग इतने कमज़ोर हो गए हो, कमज़र्फ हो गए हो? तुम्हारी ऑनर, तुम्हारी डिग्निटी इतनी मर चुकी है कि तुम हिंदुस्तान की धरती पर रहते हो और तुम्हारे हिंदुस्तान के बड़ों के साथ, तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ इस देश को आज़ादी कैसे मिली वो पढ़ो। आज तुम लोगों में से कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, इस चीज़ का दुख है। मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी है कि जब मैं अपनी फैमिली में बैठा था और युवराज को जब मैंने गद्दी दी थी, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को सीट देता है कि यू विल लुक आफ्टर द फैमिली, तो मैंने अपने परिवार से पूछा था कि भाई मैंने एक ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया, वहाँ से कमिंग बैक नहीं हो सकती, तो कल को ये मत कहना जी पिताजी आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे लिए कांटे भेज दिए। तो मुझे एक बात मेरी फैमिली ने और बेटे ने मुझे कहा कि अगर मैं देश के लिए शहीद हो सकता हूँ, और आपने कहा था, और मुझे भी खुशी होगी अगर आप इस वर्ग में, आप इस आंदोलन में अगर आप शहीद होंगे, तो मैं भी कहूँगा कि मेरा बाप भी मेरे जैसा था। दैट्स द वे द फैमिली शुड बी, शुड पुश यू फॉर अ राइट थिंग। बट व्हाट इज दिस दैट द एंटायर कंट्री जनरेशन ऑफ टुडे, देयर पेरेंट्स, आजकल ये हाल है कि भगत सिंह नेबर के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि न्यू जनरेशन को जागना चाहिए, अदरवाइज जो आज हमारे साथ हो रहा है या बड़ों के साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। माँ बाप की परवरिश की गलती है, माता के पास टाइम नहीं है, किटी पार्टीज, फिगर खराब हो जाएगा, दूध नहीं पिलाना बच्चे को, संस्कार नहीं बताने, ये हमारी माताओं का हाल है। न्यू जनरेशन इफ यू टॉकिंग अबाउट, आई थिंक अ पेरेंट शुड नो कि बच्चा पैदा करने से माँ बाप नहीं बनते, बच्चे को परवरिश करने से माँ बाप बनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। नेपोटिज्म जो आपने बोला है, ये पंजाबी में एक्सप्लेन करो, आम जट ਨੂੰ समझ नहीं आता नेपोटिज्म क्या होता है। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। करेक्ट करेक्ट, सो ऐसा होता रहा है, ये किसका कसूर है, हम सबका कसूर है। मैंने बोला ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग नेबर्स में पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं। मेरा बेटा मैं आगे लेके आऊँगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठेका ले रखा क्या है। आई थिंक द पॉलिटिकल सिस्टम और द नेशनलिज्म ऑफ दिस कंट्री शुड चेंज। 5 साल आपने किया, राज किया, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू लीडर्स। मैं पंजाब में ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को 117 जनरल्स चाहिए टू लीड द आर्मी। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम, मैं पॉलिटिक्स से आगे की सोच रहा हूँ। मैंने अपने पंजाब के लिए अपने देश के बच्चों को कैसे बनाना है, भविष्य कैसे बनाना है, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत, उनका थॉट प्रोसेस। जन्म तो सब लेते हैं, सब एक ही तरह से जन्म आता है, लेकिन जो बॉडी खुदा ने दी है, इसके बीच में हम क्या डाल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है आगे जाके, और देश का भविष्य अगर आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि जो वोटिंग सिस्टम आपने बना रखा है, हमारे लोग यहाँ एक शराब की बोतल और पैसे के पीछे जाके वोट डाल के आते हैं। अभी बिहार में हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू, ऑल द न्यू जनरेशन, टू द इंटायर कंट्री, आई वुड अपील, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत पहचानो, डोंट क्रिब, ये हो गया जी, वो हो गया जी। अगर आप लीडर लेके आए हो, अगर आप कोई चीज़ पार्टी लेके आए हो, आपने वोटें डाली हैं, मैंने नहीं डाली, ठीक है। आई हैव नॉट वोटेड फॉर द लास्ट 40 years because I feel they are the biggest criminals, these politicians in this country. But you want to change, then the entire country, youth has to change, people, the press has to change. मैं ये बात चैनल पे बोलूँ, शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी। कितने चैनल हैं जो बिक चुके हैं, कितने भी बोली लगी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना लिया, कितने में बिके सब लोग। जिस कंट्री का प्रेस बिक जाए पैसे लेके या डर से, वो कंट्री हमेशा गर्क हो जाया करती है, उनका नामो निशान मिट जाया करता है, उस जनरेशन को कभी कोई याद नहीं करता, याद रखिए। मीडिया ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ EMPLOYEES आपको पता ही है कौन सी मीडिया की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से किस किस की बात करते हैं। पंजाब आंदोलन चल रहा है, पंजाब की मीडिया को छोड़ के बाकी किसी मीडिया वालों ने यही बताया कि राजपूत ने सुसाइड कैसे करी, फलाने ने ये कैसे करा। कभी किसी ने चैनल पे दिखाया कि पंजाब में किसान कैसे मर रहे हैं, मजदूर कैसे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे मर रहे हैं, भीखमरी कैसे हो रही है, ये दिखाया नहीं दिखाया। क्यों? ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप कि नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट सनी देओल एंड आई कॉल हिम, ही हैज बिट्रेड पंजाब, यू नो व्हाई? बिकॉज उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ सनी क्या कर सकता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, तो फिर जो ऑर्डर आएगा वही करोगे, गलत होगा ठीक होगा वही करोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वेयर इज द न्यू जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर दे डूइंग? एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। और आज हमने दिवाली से बात शुरू करी थी कि आपका दिवाली मनाने को दिल करता है, जरा पंजाब की तरफ देखो क्या हो रहा है। सो आई थिंक इट्स नॉट हेयर। बिहार में 2-2, 3-3 एकड़ वालों को बाहर निकाल दिया गया। हम अंबानी, अडानी, शडानी के लिए ही जिंदगी ये देश बना है क्या? आप उनके चमचा बनने चाहते हो, उनके नीचे रहना चाहते हो? सो आई थिंक वी शुड वेक अप द इंटायर कंट्री एंड सी दैट वी सेव इंडिया। On this Diwali day, I would say, save your country, babies. Otherwise, you are going to be the doldrum. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਦੇਖੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ,
ਅਗਰ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਪਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਲਾ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? मैंने अपने चारों बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया है। युवराज सिंह को 19 साल तक पैसा खर्चा, अभी उसने जो बनाया अपनी ज़िंदगी में खुद बनाया। मेरे बाकी 3 बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ा लिखा दिया, जाओ काम करो, अपना खुद कमाओ, बाप के पास से कुछ नहीं मिलेगा। औलाद अच्छी होगी, बना लेगी, बना के रखोगे अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पोती पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए। जो चोरी करके ठगी करके ये सामान इकट्ठा करा है तो नालायक होगा, सब कुछ बेच देगा। सो आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन। उनको संस्कार मैं दूँ देश के, परिवार के, और वो आगे जाके एक ऐसे इंसान बने जो नाम पैदा करे अपने देश का, अपनी फैमिली का। ये इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना तुम्हारी जेब से, इसकी जेब से, इसकी जेब से बहुत ज़रूरी है, रख लेते हैं हम। ऑल पॉलिटिशियन, ऑल द लीडर्स डू इट। हिंदुस्तान का तमाम पैसा खा गया। आपको इसको स्टैटिस्टिक का पता है कि ऑल ऑफ यू, आप 9,762 रुपये के कर्जदार हो आज हिंदुस्तान में। डज एनीबडी नो अबाउट द इकोनॉमिक्स? नो, आई हैव टू टेल यू। तो अगर आप यही नहीं देख रहे कि अपने देश में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, तो फिर क्या फ़ायदा। बात त्यौहार से शुरू हुई थी, उसी पे एंड करना चाहता हूँ कि मेरे लिए काली दिवाली है। और जब मैं चलता हूँ पिछले 40 दिन में जो मैंने पायदान मुझे खुदा ने चूज़ करके दिया है, उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि इस देश में मैं कहानियाँ सुना करता था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कभी मुझे लगता था ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान इतना गुनाहगार कैसे हो सकता है। लेकिन आज पता लगा, और जब खुद देखा कि आज हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा रोता है रोटी के लिए, भूख के लिए, एंड देन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो वर्स्ट बात ये है कि हम लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको बोलने नहीं देती, जो डराती है, आपको मार डालेंगे, जेल में फेंक देंगे। ये तो न्याजीज भी करते थे। क्या हुआ फिर हिटलर का? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड टू स्टालिन? व्हाट हैपेंड टू अलेक्जेंड्रा? तो अगर आप ये करने चले हो और देश के हर आदमी को दुखी करना चाहते हो, तो कौन ऐसा इंसान है जो उठेगा और नई जनरेशन को ये बताएगा कि बच्चों, कल को तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ। आप 10 पूछिए। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। मैं पिछले 6 महीने से विदाउट मास्क सब कुछ घूम रहा हूँ। ये देखो ना, सबने मास्क पहन रखे, भगवान ने क्या हाल कर दिया इनका। मैंने 4-5 बार कोरोना टेस्ट कराया, मेरा तो नहीं आया, मेरा तो नेगेटिव ही आता रहा है। ये तो पैसे कमाने का धंधा है। WHO पैसे दे रहा है, 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ले रही है। कहाँ पे लोग मर गए, किधर मर गए? बॉम्बे में मैं सुनता हूँ, अरे जी यहाँ तो लोग ये से वो, कितने मरे? जिसका इम्यून सिस्टम है, बीमारी तो आती है, गला खराब होता है, बुखार होता है, वेयर इज कोरोना? व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट? अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों केसेस कम हो गए? बट यू स्टिल वांट टू वेयर द मास्क बिकॉज यू सो स्कैर्ड, यू स्टिल वांट टू कीप ऑन वॉशिंग हैंड्स 1000 टाइम्स अ डे, एंड यू डोंट वांट टू वर्क। काम चल रहा है ना, आपके मास्क नहीं पहना है, बहुत के मास्क नहीं पहना, कईयों के पहना है, वो क्या आप किधर जा रहा हो, कोरोना आपके बीच में से भी जाता है। सो स्केर्ड। ये देश में, ये देश 2000 साल गुलाम क्यों रहा? कि हम लोग बहुत डरपोक हैं, हम मौत से बहुत डरते हैं। अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दैट्स द प्रॉब्लम। यू टीच द जनरेशन, मौत तो एक दिन आनी है, आपने बोला अभी, वो तो कभी भी आ जाएगी, वो तो एक्सीडेंट होगा तब आ जाएगी। So I think it is very important to live openly and do not live a life जो झूठ की बुनियाद पर रखी हो। मेरा ये कहने का मतलब। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। नो, मैंने कभी नहीं कहा लड़ाई से कुछ होता नहीं है, लेकिन आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डायल्ड रॉन्ग नंबर। ये कश्मीर नहीं है जहाँ 370 धारा आपने उठा के वहाँ पे फौज लगा दी। ये पंजाब है और पंजाब के लोग हैं। ज़र्रा ज़र्रा मर जाएगा, बच्चा बच्चा मर जाएगा, औरत जवान सब मर जाएंगे, लेकिन एक चप्पा भी इस पंजाब की मिट्टी का नहीं ले जाने देंगे। ये मैंने बोला था, मिस्टर डानी अडवानी फलानी शरानी,
यू कम टू पंजाब, यू सी व्हाट हैपेंस। वहां बैठ के क्या बात करते हो, कम हियर, लेट्स सी इफ यू कैन एंटर। ठीक है, तो यहां पे अगर ये बात, ये तो अपना हक है ना, वी आर फाइटिंग फॉर द राइट, एवरीबडी फाइट्स फॉर द राइट। महाभारत क्यों हुई? कृष्ण महाराज ने क्या बोला, दोनों बैठो भाई, तो ये 5 हैं, तुम 5 गांव दे दो। आप लोग महाभारत बनाते हो, देखते हो, टेलीविजन पे चलती है, तो क्या बोला दुर्योधन ने, हम तो इतनी जर्रा सी मिट्टी नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? तो खुदा जब खड़ा हो गया ना सच के साथ, तो यहां भी ऐसा ही है। इफ यू थिंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स कि हम डरा धमका के कर लेंगे, ये पंजाब के लोग हैं, ये वो पंजाब है जो तिब्बत से शुरू होता था, कश्मीर तक जाता था, कंधार तक जाता था, दिल्ली तक चला था। आज भी लोग वैसे ही हैं। आप किसी की रोटी छीनोगे, किसी को दुख दोगे, तो वो रिटेलिएशन ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। हो सकता है लाख तो लाख लोग मर जाएं, गोली चले, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, कितनों को मारोगे? हाउ मेनी लेडीज यू गोना रेप, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू गोना किल? नहीं नहीं नहीं, करो ना, आओ। आप ट्रेन की बात करते हो, गुड्स की बात करते हो, देखो तो सही जाके पहले गांव में हो क्या रहा है। कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने 10 दिन से रोटी नहीं खाई, उनके बच्चों को अपनी मां की छाती का दूध चुगने के लिए मिला नहीं। क्या समझते हैं आप? अगर जिंदगी में खुदा, अगर आप बिलीव करते हो, तो किसी को सप्रेस करोगे, किसी का हक छीनोगे, तो रिटेलिएशन तो होगी, वो कहीं भी होगी। हाँ, जिनकी जमीर मरी हुई है, जिनकी जिंदगी में डिग्निटी और ऑनर नहीं है, वो बोलेंगे भाई बाप आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं कुछ मत बोलो। हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा है, जब अंग्रेज थे, जब मुसलमान थे, जब मुगल्स थे, तब भी ऐसा होता था। 50 आदमियों की एक डोली उठा के ले जाते थे, हैं, और उसके ले जाइए जी आप हमारी बेटी, हमें कुछ मत बोलिए। ये होता रहा है, आज भी हो रहा है। सो आई थिंक, और वो दे वर द सिख्स हु यूज्ड टू ब्रिंग दोज गर्ल्स बैक। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। अहमद शाह की अब्दाली बाजार में हिंदुओं की 40-40 औरतें टके टके से बिकती थी, और हमारे पंजाब के गद्दार लीडर्स जो हैं वो करोड़ों में बिकते हैं सेंटर में, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ उनकी बोली लगती है। क्योंकि जिस देश में मार्शल लोग पैदा होते हैं, वहां पे गद्दार भी होते हैं। और दुख की बात यह है कि गद्दार वो हैं जिन्होंने वोटें लेकर यहाँ पे अपने आप को एमपीज बनाया, मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, वही जाके बिक गए जब बिल पास हो रहा था। और जब पार्लियामेंटेरियन में इतनी बात चल रही थी, यही लोग इकट्ठे होके वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे खड़े होकर बिल को अपोज करते तो ये बिल पास नहीं होता। और फिर यहाँ के ड्रामे करते हो आप लोग, फिर कभी दिल्ली जाते हो, कहीं जाते हो। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्योरीफाई योर सोल्स इन लाइफ। कितना पैसा कमाओगे? अंडानी अंबानी क्या साथ में ले जाएंगे जोश कर रहे हैं? कल को उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, कल को ये गज उन पे भी गिर सकती है। जैसा कमाओगे, जितनी जहर इकट्ठी करोगे, उतना जहर उगला जाएगा, और उसके साथ खुद भी मरोगे, अपने बच्चों को भी ले डूबोगे। जो बीजोगे वही आपे उगेगा। बीज आपे खा, नानक हुक्मी आवे जा। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਾयद ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ बुला के नहीं रहते। पंजाब का हाल जान नहीं सकते। मैं तो चप्पे चप्पे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा काम है, मैं शूटिंग करनी है, अपना काम करके चला जाऊंगा, पर शायद मैं बहुत रातों से सोया नहीं हूँ। मुझे दर्द है लोगों का, मुझे दर्द है उन बेटियों का, मुझे दर्द है उन बच्चों का जिन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। अगर इस तरह का हाल करके आप खुश हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैप्पी, तो लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे, लानत है ऐसे राज पे। राजा ऐसा होना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह का राज 40 साल चला, कभी रिलीजन के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ, कभी भूखमरी नहीं हुई, कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं मिली। हालांकि 16% सिख थे, बाकी सब हिंदू थे, सब वर्ग के राजपूत थे, सब थे, एवरीबडी। उस 40 सालों में एवरीबडी वॉज लव्ड सो मच। यहाँ तक कि मुल्तान की लड़ाई के बाद भी दोनों भाइयों को उनको जगीरें दे दी गई कि तुम लड़े तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। एवरीथिंग कम्स विद लव एंड अफेक्शन। दूसरे का दर्द अगर आप समझोगे तभी आप राजा हो। अगर दूसरों को लूटोगे और ये समझोगे कि मैंने लूट मार करके दुखी करके जनता को, living like dogs, I think the 80% people of this country is living like a dog's life. अगर आप ये खुश हो तो फिर तुम जानो तो खुदा जाने।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 200 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ये गलत कह रही है। आई एम नॉट डिक्टेटिंग एनीबॉडीज नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक आदमी नहीं चलाता, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। एनआरईज की बात करी आपने, कौन से यहाँ लोग हैं, मैंने कहा जरा सर उठा के बताओ, जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा। बेटा बेटी तुम चले जाओ, तुम सुखी बसो। आप अपना पंजाब 99% खाली करके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया आपने बच्चों को। अगर आप अपना घर छोड़ के जाओगे तो उस घर में फिर पराए लोग आके रहेंगे, फिर उस घर का सत्यानाश भी होगा। तो मैंने एनआरआईज को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, एक काम करो, 3782 गांव हैं पंजाब में, एक एक गांव अडॉप्ट कर लो। बच्चा अडॉप्ट करते हैं, घर में बच्चा नहीं होता तो बच्चा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे सब खुदा के हैं, वी आर ऑल वन, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, राइट। तो आप अडॉप्ट करो उस गांव को, 5 या 5 आदमी अडॉप्शन करें और उसको बनाओ। अभी लुधियाना में एक गांव बना है, ऐसा लगता है जैसे कनाडा में घूम रहे हैं। अभी अमृतसर में एक गांव बना है, एनआरआई ने अडॉप्ट किया है, इट्स लाइक पेरिस। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं मिलके, सब लोग बाहर जो गए हैं और वो एनआरआई कर भी रहे हैं, दे हैव प्रॉमिस्ड मी दे विल डू इट, तो मैं समझता हूँ वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो पंजाब की अगर बात करें, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पंजाब ने तुम्हारा बुरा क्या किया है? तुम्हें सिखों से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हें मुसलमानों से इतनी क्यों नफरत है? वाई, व्हाट्स रॉन्ग? Why you always talk about all this civilized cultural world में आज रिलीजन के पीछे लड़ाई हो रही है? कमाल की बात है। और कभी ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई हो, आपकी जंजीरें गुलामी की काटी हो, आपके लिए मरे हो, वो कभी आपका बुरा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। दे वॉन्ट टू लिव पीसफुली विद यू, बट डोंट ड्रैग देम टू द कॉर्नर। आप किसी भी शेर को अगर कॉर्नर करोगे तो वो रिटेलिएट तो करेगा, वो खुद भी, अगर या तो खुद मरेगा या फिर तुम मरोगे। सो अभी ये जो सिचुएशन है डिफ्यूज नहीं हुई तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। देन यू हैव टू ब्रिंग अ मिलिट्री, सीआरपीएफ, किल देम, ओके, लेट्स सी। पंजाब खत्म हो जाएगा। अगर पंजाब खत्म होगा तो पंजाब के साथ हिंदुस्तान भी खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट ही चली जाएगी। मैंने कहा ना, कितनों को मार सकते हो? फिर बहुत सारी कंट्री उठेंगी, फिर ये नेशनल मुद्दा बनेगा, फिर प्रेशर पड़ेगा। सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? Why do you want to do this? मैं आपसे ये बात पूछूं या किसी से ये पूछूं, मेरी शक्ल खराब है क्या? क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? मैं तुम्हारा भाई हूँ, बेटा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। Why are you doing this? What for? What do you want? तो फिर ऐसे करो, 150 करोड़ जनता है, 125 करोड़ मार डालो हिंदुस्तानियों को, 25 करोड़ पे राज करो यार, मौज करो। That's what you want to do? ये तो ये लगता है। So I mean, दिस इज, आपने देखा नहीं, सुना है। मैं देखा हूँ, गया हूँ, और जो दर्द मेरे सीने में है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ਸੋ ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਮਨਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? वन मोर थिंग आई वुड से, इफ ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ये जो रहनुमा हमारे हिंदुस्तान का है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी नाइस, अगर उनके दिल यहाँ सीने में दिल है, मोहब्बत भरा दिल है, तो अगर वो ये आज कह सकते हैं कि भाई हमने बिल बनाया था, अपनी तरफ से ठीक किया था, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, ये फाड़ दिया दिवाली गिफ्ट। अगर घर में एक बाप कोई फैसला करता है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उसका कोई फैसला बच्चों को या घर वालों को नहीं अच्छा लगता तो बाप क्या करता है? ओके, मेरे घर में होता है, कोई डिसीजन होता है, डैड दैट्स नॉट राइट, अच्छा ओके कैन यू डू इट। तो ऐसा करना चाहिए ना। तो इफ यू कैन डू दैट, वो बड़े दिल वाले कर सकते हैं, बट आई डाउट वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰਲੀਨ ਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ